એક વખત મારું વજન ઓછું થઈ જાય પછી જેટલું ઓછું થયું છે એના કરતાં વધારે ફટાફટ વધી જશે। अगर सही टेक्निक से किया है तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, अदरवाइज बढ़ जाएगा। મારે જો વજન ઓછું કરવું છે તો સવારે જે હેવી નાસ્તો કરવાની આદત છે એ મૂકી દેવી પડશે। नाश्ता हैवी नहीं, सही होना बहुत जरूरी है और बिना नाश्ते से वजन कम भी नहीं होगा। सही नाश्ते से ही वजन कम होगा। ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ જેવા રોગ એક વખત થઈ જાય એના પછી એ ફરી મટી નહીં શકે। बिल्कुल जा सकता है, मेरा खुद का गया है, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल खराब करने से ये आता है तो लाइफस्टाइल ठीक करने से ये चला भी जाता है। એક મિનિટ, એટલે હું મારું વજન ઓછું કરીશ, લાઈફસ્ટાઈલ સુધારીશ એટલે ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ જેવા રોગ મટી જશે। बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि वो आया इसीलिए था, क्योंकि लाइफस्टाइल और खाने को खराब किया था। सही करना है, उसके बाद वो चला जाएगा। એ તો મારે વજન ઓછું કરવું જ છે, પણ શું વજન ઓછું કરવા માટે બહુ ભૂખ્યા રહેવું પડશે? बिल्कुल भी नहीं, खाते पीते वजन कम करना है। खाते पीते वजन कम करिए सही खाने के साथ। ખાતા ખાતા વજન ઓછું થાય એ કઈ રીતે થાય? ये तो शॉर्ट में नहीं बता सकती, इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે। મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર અને વજન નહીં ઉતરતું યાર, આ પ્રોબ્લેમ બધાને હોય છે। આ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે એક બહુ જ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ જોડે હું આવ્યો છું વડોદરા, ગુજરાતમાં। વ્યક્તિ કોણ છે? મિસ ભાવના સિન્હા, જે એક વેલનેસ કોચ છે। થેન્ક યુ સો મચ મેમ, તમે અમને સમય આપ્યો છે। એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન હું આપું ને તો એમણે પોતે તો ઘણું વજન ઓછું કર્યું છે, પોતાનું 20-25 કિલો, ઘણા બધા રોગ એમણે પોતાના રિવર્સ કર્યા છે, જેના માટે થઈને બહુ જ બધા ન્યૂઝપેપર્સમાં પણ એમના આર્ટિકલ્સ આવ્યા છે। એટલું જ નહીં, 300થી વધુ લોકોને એમણે 500 કિલોથી વધુ ઉતારવામાં હેલ્પ કરી છે। એટલું જ નહીં, આ 300 લોકોમાંથી ઘણા બધા લોકો એવા હતા જેમનું ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ જેવા રોગ પણ રિવર્સ કરેલા છે। એમની હિસ્ટ્રી કહું તો એ પોતે એક બેન્કર હતા, બેંક ઓફ બરોડામાં એક ઓફિસર હતા અને ગવર્મેન્ટ જોબ છોડીને આજે ફૂલ ટાઈમ વેલનેસ કોચ છે, કારણ કે એમને જોઈએ છે કે લોકોમાં હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમોટ કરે। ભાવના મેમ એમ તો બિહારથી છે પણ અત્યારે ગુજરાતમાં રહે છે, બટ હિન્દીમાં એ વધારે કમ્ફર્ટેબલ છે। મને એવું છે કે સારી ઇન્ફોર્મેશન ભલે હિન્દીમાં હશે, તમે સમજી જ જશો। તો મેમ, હવે પહેલો સવાલ જે હું તમને પૂછવા માંગુ છું ને એ જ છે કે વજન વધારે, ઓવરવેટ, એ કોને કહેવાય? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि ये मौका दिया। अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और साधारण भाषा में मैं बताऊं तो अपनी हाइट आप चेक कर लो सेंटीमीटर में कितनी है। 155 है, 100 कम कर दो, 55 आपकी आइडियल वेट। अगर आप 55 नहीं हो मतलब आप ओवरवेट हो। सबसे आसान। આટલું સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન મને આજ સુધી કોઈએ નહોતું કીધું। બાકી કોમ્પ્લિકેટેડ ફોર્મ્યુલા હોય છે બોડી માસ ઇન્ડેક્સના, એ ફોર્મ્યુલા કરતાં આ હાઇટમાંથી 100 ઓછું કરતી એટલું વજન હોવું જોઈએ। તો હવે મારે એ જાણવું છે કે તમે તમારા ક્લાયન્ટ્સને કઈ રીતે હેલ્પ કરો છો આમાં વજન ઉતારવામાં? सबसे पहले तो क्लाइंट को इस तरह से हेल्प करती हूँ कि उनको यही समझने के लिए 3 दिन फ्री ट्रायल लेने बुलाती हूँ ऑनलाइन सेशन में, जो जूम पर होता है। आप कहीं से भी बैठे अपने घर से 3 दिन का फ्री ट्रायल अटेंड करिए। आपके घर में जो आप खाते पीते हैं, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें कैसे छोटे छोटे और मोटे बदलाव करके आप अपने को एक अनुभव दे सकते हैं बदलाव का। वजन कम कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी ले सकते हैं, अच्छी नींद ला सकते हैं। उसका अनुभव दिलाने के लिए फ्री ट्रायल का 3 दिन का सेशन देते हैं। उसके बाद हम आपके लाइफस्टाइल के ऊपर काम करने के लिए आपसे बातचीत करते हैं और यही जरिया है। તો પછી આ ફ્રી ટ્રાયલ દરેક વ્યુઅરને અગર જોઈતું હોય તો એ કઈ રીતે મેળવી શકશે? बहुत ही आसान, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप दे सकते हो, अपनी डिटेल्स भेज सकते हो। कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको भेजनी बहुत ज़रूरी है और एक जूम का आपको कॉल आ जाएगा 1 to 1 कि आपको डेमो कॉल करना है। उसके बाद आपको सेशन की लिंक मिल जाएगी। 1 घंटे का वो सेशन वीडियो ऑन करके तत्परता के साथ बैठ करके खुद को देने की ज़रूरत है, क्योंकि खुद जब तक समझेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं करने वाले हैं और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने वाला है। ये ऐसा मैं मानती हूँ। તો એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સેશન માટેનો ફોન નંબર મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દીધો છે, અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર પણ તમને દેખાય છે, એના ઉપર તમે તમારી ડિટેલ્સ વોટ્સએપ કરી દેજો। સેશનમાં તો જાણ થઈ જશે કે કઈ રીતે વજન ઉતારવાનું છે, પણ મારે અત્યારે જાણવું હોય કે વજન ઉતારવા માટે શું કરવાનું, તો તમે મને જણાવી શકશો? वजन उतारने के लिए क्या करना है उससे अच्छा ज़रूरी ये समझने की ज़रूरत है बढ़ा क्यों था। अगर वो वजन बढ़ने के पीछे का कारण समझेंगे तो वो रहता है हमारा हाथ से मुंह तक का सफ़र। खाना हम क्या खाते हैं, सोते कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसे है, किन लोगों के बीच रहते हैं, कैसी हमारी आदतें हैं, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं। जैसी हमारी आदतें वैसे ही हम रहने वाले हैं। तो वजन बढ़ा क्यों, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि 80% आपका डाइट मायने रखता है कि आप क्या खाते हो, आपकी बॉडी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और 20% ऐसा है कि आप क्या वर्कआउट करते हो, क्या फिजिकल एक्टिविटी हो। और इस दोनों चीज़ों को समझ के ही हम वजन को कम कर सकते हैं।
इसके साथ डाइट सही करने की बात आए तो खाना तो सही करना ही पड़ेगा, तो उसको ही कंसिडर करना है जिसकी शुरुआत नाश्ते से होती है। नाश्ता कैसे करना होता है? नाश्ता सही होना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के नाश्ते होते हैं, या तो एकदम जीभ को पसंद की जो आए वो करिए, या जीभ के अंदर जो बॉडी को चाहिए वो करिए। इसकी समझ के लिए एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी, कभी आपने महसूस किया है कि समोसा खाने के बाद दूसरा समोसा खाने का मन होता है, लेकिन अगर आपने एक एप्पल खाया हो, एक ककड़ी खाया हो, तो दूसरा खाने का मन नहीं करता है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? समोसा जीभ को पसंद है, बॉडी को तो ककड़ी चाहिए, क्योंकि एप्पल चाहिए, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बॉडी को वो चाहिए, बॉडी उससे बना है। समोसे में बेचारा ढूंढता है, मिलता नहीं है, वो बोलता है और लाओ और लाओ। हमें लगता है कि वो खाना मांग रहा है, समोसा मांग रहा है, एक्चुअली वो आयरन मांगता है, कैल्शियम मांगता है, जो उसकी प्रोटीन है, जो डाइट है वो मांगता है। वही हमें समझनी है और वही हमें देना है। ये समोसे वाली एनालॉजी मैंने પહેલી વાર સુની है અને આ પહેલી વખત સાંભળીને મને પણ આ નવાઈ જ લાગી રહી છે કે એટલે બીજું સમોસું ખાવાનું ઈચ્છા થાય છે કે બોડીને ન્યુટ્રિયન્ટ્સની જરૂરત હોય છે। યસ, હવે આપણે વાત કરતા હતા હમણાં ત્યારે તમે મને એક બોડી એજની વાત કરી હતી કે જે કેલેન્ડર એજ હોય એ અને બોડી એજ અલગ અલગ હોય, તો એ તમે સમજાવી શકશો? बिल्कुल सही। बॉडी एज क्या होती है कि आपके ऑर्गेन की एज, मैं अभी जिस एज में हूँ उतनी ही हमारी वो ऑर्गेन की एज रहनी चाहिए, ये तो पक्की है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, ऐसा हमारा हार्ट है छोटा सा, लीवर है छोटा सा, और उसके ऊपर हमने डाल दिया है इतना सारा वजन, इतना सारा फैट, और अब उसको क्या बोलते हैं, यूं कुछ दबा के रख दिया फैट ने, बोले तुम वर्क करो वर्क करो वर्क करो, तो वो हमसे ज़्यादा चलता है। हमारा 24 घंटा तो एक बार होता है, उसके 24 घंटा एक दिन में तो कई बार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आज 24 साल के हैं तो वो बेचारा 42 साल का है, 48 साल का है, क्योंकि उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम जितने वजन के हैं उतना वजन डाल के अगर हम ओढ़ के सो सकते हैं क्या? नींद में भी हटा देंगे गद्दे को, लेकिन बॉडी को क्या कर रहा है, बेचारा ऑर्गन अपना फैट हटा नहीं पा रहा है, उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसकी एज हमसे ज़्यादा चल रही है। और यही रिवर्स करना है। कैसे करेंगे? उसके ऊपर का उठा हुआ जो परत है ना वसा का, जो फैट का, उसको ही कम करना है, और वो सिर्फ खाने को सही करके किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। વાવ! તો હવે ઘણી વખત એવું જોવામાં આવે છે કે લોકો વજન ઉતારવામાં એક જ મહિનામાં 2 મહિનામાં બહુ જ બધું વજન ઉતારી દેતા હોય છે। તો એક મહિનામાં કેટલું વજન ઉતારવું આપણા માટે હેલ્ધી છે, અને જો અગર એનાથી વધારે ઉતારીએ તો શું થાય? ये बात बिल्कुल सही है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। एक हेल्दी फैट लॉस 3 से 5 केजी तक सही है, अगर सही तरीके से करें। और ज़्यादा जहाँ तक उतारने की बात है तो बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रबर को खींचेंगे तो वापस तो उधर ही चोट लगने वाली है। हेल्दी फैट लॉस बहुत ज़रूरी है, वही सस्टेन रहेगा, क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हुए सही करेगा, इसलिए वो ज़रूरी है। बाउंस बैक नहीं होगा अगर सही तरीके से किया गया, और सही तरीके से नहीं किया गया तो डेफिनेटली बाउंस बैक होगा। બસ એ જ મારે જાણવું છે કે ઘણી વખત એવું થાય છે કે વજન ઓછું થઈ જાય એના પછી તરત જ વજન વધી જતું હોય છે બધાને, તો એ બાઉન્સ બેક થવાનું કારણ શું હોય? ये बहुत ही अच्छी बात है जो समझनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा वजन हमारी बॉडी के हिसाब से ये कुछ ऐसे ब्रासलेट जैसा है जो रबर होता है। अभी आप जब यहाँ पे ये रबर नेचुरल है, इसको बढ़ा दो, ये वजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जब आप वजन कम करते हो धीरे 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 ये छोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट होगा, लेकिन जब तक हम आइडियल वेट पर आएंगे तब तक इसे आने के बाद कितने समय तक रुकना था, जितने समय तक कम करने में समय लगा था। अगर 5 महीने 6 महीने वजन कम करने में समय लगे तो आइडियल वेट पर आगे 5 महीने 6 महीने रुको, तब बॉडी को, माइंड को मैसेज जाएगा नाउ इट इज़ योर आइडियल वेट, और तब मैसेज जाएगा, तब वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये मैसेज ही तुरंत गया है फास्ट ट्रैक, और तुरंत छोड़ देते हैं तो वापस वो पुराने पैटर्न में चला जाता है, और यही वजह है कि बाउंस बैक होता है। एक बार माइंड को मैसेज दे दिया कि नाउ इट इज़ योर आइडियल वेट, तो फिर वो नहीं बढ़ेगा। એટલે મારે આ જ પૂછવું હતું તમને કે એક વખત તમે જે બધી ટેકનિક્સ આપો છો એ ટેકનિકને ફોલો કરીએ લાઈફસ્ટાઈલમાં, ફૂડમાં, તો પછી કેટલા સમય સુધી એ ટેકનિકને ફોલો કરવાની હોય કે આખી જિંદગી કરવી પડશે? ये मस्त सवाल है। मैं ये पूछती हूँ कितने समय तक आपको हेल्दी रहना है और वजन कम रखना है, हेल्दी बने रहना है। ये खुद से सवाल पूछने वाली है कि कब तक आपको हेल्दी रहना है, कब तक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, उसका जवाब आपका दिल देगा। और जब तक रहना है तब तक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और खाते पीते करना है, और जो प्रकृति से मिला है सही लाइफस्टाइल उसको ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ना है, और खाते पीते सस्टेनेबल वजन कम करना है। બસ એ ખાતે પીતે જો આપને બતાવ્યા ના, એ જ મારે જાણવું છે કે ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે એવી 3 વસ્તુ શું કરવી જોઈએ અને 3 વસ્તુ કઈ છે જે ના કરવી જોઈએ? सबसे पहले तो खाली पेट में सुबह सुबह रहना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट जो ब्रंच करते हैं ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमारी बॉडी रात में ऑलरेडी, उसका बेचारे का नाम ब्रेकफास्ट क्यों था ना, फास्ट को ब्रेक करना था, वो हम नहीं करते हैं। और ब्रेकफास्ट हमेशा आपके घर में कोई भी फ्रूट्स है ना, वहाँ से स्टार्ट करिए।
मैं वर्ल्ड बेस्ट ब्रेकफास्ट करती हूँ, वो क्या करती हूँ आप मेरे क्लास में आके जान सकते हैं। लेकिन आपके घर में राइट नाउ कौन सा ब्रेकफास्ट सही है? जो फ्रूट है, फ्रूट से शुरुआत करिए। उसके बाद जब भी आप लंच करते हैं ना, जब भी खाना खाते हैं, पहले प्रसाद खाइए, क्योंकि प्रसाद ही ऐसी चीज़ है ना जिसमें हम नमक हल्दी मसाला कुछ मिलाते नहीं हैं, और वो प्रसाद प्रकृति का दिया हुआ है। प्लांट बेस्ड जितने भी कलरफुल सैलेड आप खा सकते हैं ना, जो सीजनल है, जो लोकल मार्केट का है, कुछ ऐसा नहीं लेना है जो बाहर से प्रिजर्वेटिव जैसा रहे। आपको लोकल एरिया का आपका सलाद खाना है, बिना नमक के, बिना मसाले के। उसके बाद ही खाना खाना है, घर का पका हुआ या बाहर का भी खाते हो तो भी चलेगा, लेकिन सलाद ज़रूरी है। यही चीज़ आप रात में करें। बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ा पानी पिएं। कितना होना चाहिए डिटेल में तो बहुत बड़ी बात है, एक साधारण सी वस्तु में बोलना चाहूँगी। 20 kg का आइडियल वेट किसी का है तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 3.5 लीटर 4 लीटर बहुत होता है। ऐसा नहीं कि 100 kg के हैं तो 5 kg पिएंगे, 5 लीटर पिएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए ये छोटी चीज़ है। और हाँ, सोने से 2 घंटा से 3 घंटा पहले डिनर ले लीजिए। बस ये 3 चीज़ें भी अगर आपने करी तो आप एक आइडियल हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये करना, आज ही से करिए। હવે અગર વજન વધી જાય છે તો એના પછી કયા કયા રોગ થઈ શકે મને? जितने भी रोग जिसके आगे ये लिखा हुआ है लाइफ स्टाइल डिजीज़, वो सारे आ सकते हैं। क्योंकि वो मेरे पास तो 3-4 तो मुझे ही आए थे। मुझे पहले बेटे के जन्म में थायराइड आया, वो भी लाइफ स्टाइल डिजीज़, डायबिटीज़ आया, वो भी लाइफ स्टाइल डिजीज़, फिर बाद में बीपी आया, जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस मुझे पोस्टपार्टम में हुआ, छोटे बेटे के जन्म के 6 महीने बाद। ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। हर वो चीज़ जो बॉडी एक है, लेग क्रैम्पिंग है, थकावट रहना, इरिटेशन, माइग्रेन, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। और वजन अगर बढ़ा तो वो अपने सारे सगे संबंधी को तो एक बार ले ही आएगा। और इसका अगर मैं बड़ा रूप देखने जाऊँ, बताने जाऊँ, तो कैंसर तक का भी इसका एक मूल कारण आपकी लाइफ स्टाइल और बढ़ा हुआ वजन है। वाव! तो फिर ये जो आपने रोग बताए, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये બધા વજન ઓછું થાય તો રિવર્સ થઈ શકે છે? जिसने इसे बुलाया था अगर वही नहीं रहे तो वो कहाँ से रहेगा? अकेले तो उसे मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं 20 kg ओवरवेट थी, जब इसको कम किया, मुझे भी कभी नहीं लगा था। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने बोला था कि चला जाएगा, लेकिन कभी नहीं गया, क्योंकि लाइफ स्टाइल ठीक ही नहीं था, फूड ठीक ही नहीं था। जब वज़न कम किया तो जब मैं रूटीन चेकअप कराने गई तो मुझे पता चला मेरा जो HbA1c आता था 7.8, 7.3, राइट नाउ 4.8 है। तो ये चीज़ें डॉक्टर ने ही बताई थी, मैं तो सिर्फ चेकअप के दौरान में मुझे पता चला। एंड नाउ आई हैव रिवर्स्ड ऑल माई मेडिसिन विथ डिस्क्लेमर कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है सही खाने का और सही लाइफ स्टाइल का। और इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ गुंजी कि अपने को है ना अनुभव करके देखना चाहिए, अनुमान लगाना नहीं चाहिए। और यही अनुभव करने के लिए 3 दिन फ्री ट्रायल का सेशन रखा है, जिसमें आकर के आप अनुभव कर सकते हैं। अनुभव जरूर करिए, आपके साथ क्या हो सकता है। अब एक बार मैं फिट हो जाता हूँ, मेरा वजन कम हो जाता है, फिट થઈ જઈએ, એના પછી મને મારા બોડીમાં શું શું ચેન્જીસ જોવા મળશે? सबसे अच्छा साइड इफेक्ट तो ये होगा कि आप यंग हो जाइएगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाइएगा, सही शेप में रहिएगा, सही वेट में रहिएगा और सारे तनाव से मुक्त रहिएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अपने आप से मिलिएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। ઓ વાવ! તો પછી આજકાલના યંગસ્ટર્સને તમે શું સલાહ આપશો? सलाह तो यंगस्टर्स लेते ही नहीं हैं। उनको जहाँ तक मुझे लगता है कि सलाह अच्छा नहीं लगता लेना, लेकिन मैं ध्यान जरूर दिलाना चाहूँगी। थिंक अबाउट इट कि आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपके जैसा अभी जो आप खाना खा रहे हो, जो लाइफ स्टाइल में जी रहे हो, वो नहीं किया था। फिर भी वो कौन कौन सी बीमारी के साथ गुजर रहे हैं राइट नाउ। और आपकी लाइफ स्टाइल अभी क्या है और आपकी फूड हैबिट अभी क्या है, एक क्लिक से कुछ भी मंगाते हैं, कभी भी खाते हैं। तो जब मम्मी पापा की उम्र के आप हो जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? थिंक अबाउट इट एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल। થેન્ક યુ સો મચ મેમ, આપને સારે સવાલો કા જવાબ દિયા। મિસ ભાવના સિન્હા આપણી જોડે જોડાયા હતા વડોદરાથી, જે એક વેલનેસ કોચ છે। અને આજે આટલા વર્ષોથી એક વાત કહું કરીએ છીએ તો પણ હું તમને કહી શકું છું કે મને આજે ઘણી બધી નવી વસ્તુઓ જાણવા મળી। તમે એમ તો મેમ ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા। મારે અગર કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવાનો રહી ગયો છે તો તમે કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો કે પછી મેમને ડિરેક્ટલી પૂછી શકશો। એમનું જે 3 દિવસનું ફ્રી ટ્રાયલ તમને મળે છે આ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરીને એ ટ્રાયલમાં। થેન્ક યુ सो मच मैम, आपने समय दिया, हम सो मच, बहुत आभारी है। આ વિડીયોની માહિતી તમને ગમી હશે અને આ માહિતી જોતા જોતા સાંભળતા સાંભળતા તમને એવા 3 વ્યક્તિ યાદ આવ્યા જ હશે જે 3 વ્યક્તિને આ માહિતી મોકલવા જેવી લાગી છે। સંકોચ ના કરતા મોકલી દેજો, એમને ખરાબ નહીં લાગે, તમે એમનું સારું જ ઈચ્છો છો। અને આવી માહિતી જોવા માટે એક વાત કહું, જોતા રહેજો VTVgujarati.com પર। આપણે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ, થેન્ક યુ સો મચ મેમ। थैंक यू सो मच।